हेलो माय अमेजिंग लिसनर, आप सुन रहे रेडियो अफसाना 91.2 एफएम और मैं आने वाली एक बार फिर से आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सा शो लेकर जिसका नाम है सब कुछ मुमकिन है, और जहाँ पर हम करते हैं बातें भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ जो रहती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, और हम सबसे ज़्यादा जो अवॉइड करते हैं वो भी मेरे ख्याल से मेंटल हेल्थ ही होता है। तो हमारे साथ आज स्टूडियो पे बहुत ही रिनाउंड साइकोथेरेपिस्ट है मेघा कलचूरी मैम। सो मेघा जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आकर? Very nice. Actually, it's for me a very new experience. Yes. So it's really nice and I'm feeling very happy and excited. ओके, तो मेघा जी, जैसा कि हमने बात किया है मेंटल हेल्थ के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं एंजाइटी रहता है, डिप्रेशन रहता है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा लोग बात भी कर रहे हैं। पहले थोड़ा समय पहले ऐसा होता था कि लोग बात भी नहीं करना चाहते थे कि वो किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, उनको ऐसा लगता था कि पागल लोग ही जाते हैं। करेक्ट। तो आपकी ये जो जर्नी है, आपने इस पर्टिकुलर फील्ड में कैसे शुरुआत की और क्या रही है आपकी जर्नी, वो हम जानना चाहते हैं। जी ज़रूर। So if I say this my journey of becoming a therapist, when it start around year in 2015 when I took my admission for studying psychology in DAVV University. But if we say I always wanted to be a psychotherapist, so no, never. As all students, those who are good in mathematics, I was good in mathematics. I was a student who was really good in mathematics. So that time ऐसे होता था कि आप mathematics में अच्छे हो तो आप engineer बनोगे. Yes. So I also decided to be an engineer. Okay. That too a mechanical engineer. That time it was my dream. But unfortunately during those years I was not really healthy. So because of the situation, my parents also suggested कि undergrad है ना, आप साइंस में ही कर लो और यहीं से कर लो, अपने नेटिव टाउन से ही कर लो. So I did my undergrad in science, PCM. Then I did my postgrad in management because that time my thought was ये सबसे short course है जिसके बाद जल्दी job लग जाएगी. Okay. And then I did my beginning years जो job के होते हैं, that was in banking. And as we all know, it's not decided, and for life nothing is decided for all of us. Destined. Yeah, destined, and it gets shift very soon after. Yes. So in 2011 I got married and shifted here in Indore. That was a kind of break for me. And I took a break and thought अभी क्या करना है, बैंकिंग जॉब तो क्या है, बहुत टाइम टेकिंग है, और अब इतना टाइम आप फैमिली और बैंक के साथ नहीं मैनेज कर पाओगे, क्या करना है. तो विथ सजेशंस एंड ऑल जो हम लोग हमेशा से करते आते हैं, लोग सजेस्ट करते हैं. सो आई चूज टू गो इनटू एकेडमिक्स की कॉलेज ज्वाइन करते हैं, बच्चों को पढ़ाएंगे. आई वॉज वर्किंग बट नॉट enjoying, was not really, I would say, a very happy experience in terms of job satisfaction. मज़ा नहीं आ रहा था. So again I decided कि नहीं, अब ये नहीं करना है. And in my family, my parents, and I have two sisters, all of them are in government job. So now that pressure started building up. अब government job की तैयारी कर लो, अब सब कुछ कर लिया, अब government job की तैयारी करो. Okay. But I'm somebody in my family who always push the envelopes. नहीं करना है, I will not go for it. And I this time I decided to select my career not in a very traditional way कि जो सब बोल रहे हैं वो करना है. In fact, I wanted to go with a scientific approach कि क्या होना चाहिए my career, and decided to go for career counseling. Got many options as a result, and choose psychology or being a psychotherapist as a very consciously and with predetermination that अब यही करना है. Okay. Yeah. And then I studied psychology. I choose my therapy approach as a cognitive behavior therapy approach, and for that I get multiple trainings from Beck Institute, which is situated in Philadelphia, USA. Okay. It is actually a original, I would say, origin of cognitive behavior therapy. It's from that institute only. So I took all my trainings from there, and since then I'm working continuously. And I would like to tell everyone about my expertise too here, like anxiety disorder, depression, obsessive compulsive disorder, and personality disorders, sleep disturbance, weight management issues, behavioral addiction issues, all comes under my expertise. Okay, मतलब काफ़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है आपकी, मतलब कि बहुत सारी एक्सपर्टीज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम भी जानना चाहते हैं. एंड पर्टिकुलरली मैं भी जानना चाहती हूँ कि क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग बातें करते हैं
कि मुझे एंजाइटी हो रही है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, वर्क प्लेस पे स्पेसिफिकली जो है वो पैनिक अटैक्स हो रहे हैं या एंजाइटी हो रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल अभी एक वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद मैं लौटूंगी और करूँगी और भी बातें मेघा से। और तब तक के लिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा काम है, आपको ट्यून करके रखना है रेडियो इप्सा 91.2 FM और सुनना है मुझे यानी वानी को। और शो चल रहा है सब कुछ मुमकिन है। रेडियो इप्सा। हेलो एंड वेलकम बैक अमेजिंग लिसनर, आप सुन रहे रेडियो इप्सा और मैं यानी वानी एक बार फिर से आ गई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शो लेकर जिसका नाम है सब कुछ मुमकिन है। और जहाँ पर हम करते हैं बातें कि भाई हमारी जो मेंटल हेल्थ है, जिसको हम लीस्ट इंपॉर्टेंट समझते हैं, वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है, बहुत सारे आजकल शोज़ भी चलते हैं, लोग बात करते हैं एंजाइटी की, डिप्रेशन की और बहुत सारी चीज़ें बात करते हैं। हमारे यहाँ पे आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है मेघा कलचुरी मैम, और जो कि एक साइकोथेरेपिस्ट हैं, बहुत प्रैक्टिस करती हैं। और उसी के साथ बहुत ही जो मैंने बातचीत करी उससे मुझे पता चला कि बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही डेडिकेटेड साइकोथेरेपिस्ट हैं, और जिन्होंने बहुत एक्सपीरियंस के बाद जो है वो चीज़ें हमें बताई हैं उनकी जर्नी के बारे में। तो मेघा, जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले आपने हमें बताया कि कैसे आपकी जर्नी रही है और आपने कॉन्शियसली डिसाइड किया है कि आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करना है। अब अगर हम आगे बढ़ें तो जैसे हम देखते हैं कि हर कोई आज, हर दूसरा व्यक्ति बोलता है कि मुझे एंजाइटी हो रही है, और एंजाइटी को डिफाइन जो है वो कोई नहीं कर पा रहा है, वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो अगर मैं आपसे एज एन एक्सपर्ट पूछती हूँ कि व्हाट एंजाइटी एग्जैक्टली मीन्स, तो उसका क्या जवाब होगा? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग है ना ओवरली यूज भी कर रहे हैं आजकल इन टर्म्स को, जिसको हम कहते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन। हर तीसरा इंसान आके बोलता है मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। सो इसको मैं एक बहुत अच्छी एक मेटाफोर से आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, एक एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। तो मैं अगर बोलूँ ना मेरे लिए एंजाइटी क्या है, तो मेरे लिए एंजाइटी इज वो एक बंदर है ना जो मेरी पीठ पे बैठा हुआ है, जो कि कंटिन्यूसली मेरे कान में बोल रहा है, मुझे परेशान कर रहा है और नॉट लेटिंग मी फोकस, जो काम मुझे करना है उस पर फोकस नहीं करने दे रहा है, एंड एवरी टाइम मेकिंग मी कहना चाहिए कंसंट्रेशन मेरा कम कर रहा है, मेरा ध्यान बटा रहा है। तो बेसिकली एंजाइटी वही होती है कि एंजाइटी समथिंग जो पूरे समय आपके दिमाग में चल रहा होता है, इट्स अ फियर, है ना। तो अगर हम बोलते हैं फियर है, तो डर तो हमें हर छोटी छोटी बड़ी चीज़ों सभी में लगता है डर, राइट। तो पर क्या एंजाइटी और फियर में फिर क्या डिफरेंस है? तो अगर जैसे हम यहाँ आ रहे हैं, मेरे लिए ये रेडियो शो बहुत पहली बार मैंने किया है, राइट। तो मुझे वो एक थोड़ा सा फियर और नर्वसनेस है। दिस इज नॉट एंजाइटी, दिस इज समथिंग एनीबडी विल फील, किसी को भी फील होगा जो हम पहली बार कर रहे हैं। जैसे हमें जो एक प्रेशर रहता है, तो उसे हम फियर कह सकते हैं, छोटा मोटा फियर है। करेक्ट, छोटा मोटा फियर है। बट प्रॉब्लम तब होती है जब ये जो फियर है, ये जो डर है, ये परसिस्टेंट हो जाता है, लगातार हमारी लाइफ में बना रहता है, इवन इफ कोई सिचुएशन भी नहीं है, हम पूरे समय डर में रहते हैं। दिस इज एक्चुअली एंजाइटी। ओके, मतलब ये जो लोग जैसे एग्जाम देने भी जा रहे हैं तो बोल रहे हैं एंजाइटी हो रहा है, तो वो एंजाइटी नहीं है एग्जैक्टली, वो फियर है, आपको किसी चीज के होने का जो फियर कह सकते हैं। करेक्ट, वो कह सकते हैं। और एंजाइटी इज समथिंग डिफरेंट जो कंटिन्यूअस है, परसिस्टेंस है। और जब हम एंजाइटी की बात करते हैं तो हमको इसके सिम्टम्स को भी चेक करना चाहिए, क्योंकि जो मैंने कहा कि फियर है तो हम मान लेते हैं मुझे एंजाइटी हो रही है। तो जब हम एंजाइटी की बात करते हैं तो हमें दो तरीके के सिम्टम्स होते हैं। हमारा माइंड तो फील करता ही है, हमारी बॉडी भी रिस्पॉन्ड करती है, और जब हम इन चीज़ों को चेक करते हैं देन वी कैन आइडेंटिफाई, हम पता कर सकते हैं कि यार ये फियर है या एक्चुअली अब मुझे एंजाइटी का प्रॉब्लम हो चुका है। तो वो क्या है? अगर हम मेंटल बात करते हैं, कंटिन्यूस रेसिंग थॉट्स में परसेप्शन चेंज हो जाता है कि जिन चीज़ों में मुझे हम छोटी चीज़ों को भी डर मान लेते हैं, या जैसे मैं अभी आ रही हूँ और मुझे बात करना है, मैंने इसमें एक्सेसिव फियर ले लिया कि पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं क्या बनेगा, तो ये मेरा थॉट चेंज हो गया, है ना। ओवर थिंकिंग हो गई, जिसको हम कह रहे हैं चेंज इन परसेप्शन, है ना। फिर होता है कंटिन्यूस थॉट भी हो गए हैं, और नेगेटिव थॉट्स, मोर नेगेटिव थॉट्स। अपनी कैपेसिटी को हम कम आंकने लगते हैं कि अब ये जो भी काम है मुझसे तो बनेगा नहीं। जब हम बात करते हैं फिजिकल सिम्टम्स की, तो फिजिकल सिम्टम्स में आते हैं रेजिंग हार्ट बीट, धड़कनें तेज हो जाना, पसीने छूटना, है ना, जिसको हम कहते हैं ठंडे और गर्म। बहुत सारे लोगों से मैंने मेरे क्लाइंट से सुने ये वर्ड कि मैम मुझे पसीने छूटते हैं ठंडे और गर्म, है ना। लिटरली ये कहते हैं लोग, बट वो सही कहते हैं, ये होता है। बहुत ज़्यादा स्टमक अपसेट, नौजिया, खाने के पैटर्न और सोने के पैटर्न में चेंज, कि या तो बहुत ज़्यादा सो रहे हैं या बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, और
हाँ, ये सारे फियर्स हैं जो Okay. हमको फिजिकली फील मतलब होते हैं। एंजाइटी जो है वो एक कंटिन्यूअस फियर जिसे कह सकते हाँ, हैं, ये कह सकते हैं, बिल्कुल right? बिल्कुल। पर जैसे आजकल सभी लोग काम कर रहे हैं, एवरीवन इज वर्किंग समवेयर, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजाइटी जो है प्रोफेशनल लाइफ में जो है वो एंजाइटी भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है डे बाय डे, तो उसके लिए आपका क्या थॉट है? जी बिल्कुल बढ़ रही है, और वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम लोग सभी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हम लोगों ने अपनी लिमिट नहीं डिसाइड करके रखी है, और हम सभी, वो होता है ना कि काम है और मुझे भी एक्सेल करना है, आपको भी करना है, तो हम एक्स्ट्रा आवर्स में भी काम करते हैं। यस, एंड इट इज़ एक्चुअली हैम्परिंग अ लॉट। परफॉर्मेंस एंग्जाइटी बढ़ गया कि अब मुझे ज़्यादा काम करना है, तो कैपेसिटी कितनी है वर्सेस परफॉर्मेंस क्या है, कि Yes. जितनी मेरी कैपेसिटी उससे ज़्यादा मैंने काम लिया है तो परफॉर्मेंस में इफेक्ट पड़ेगा। तो वहाँ से आ जाती परफॉर्मेंस एंग्जाइटी कि अब मेरा परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है, वेदर आई विल बी परफॉर्मिंग गुड। मैं अपनी कैपेसिटी को तो हम उस समय काउंट नहीं करते हैं, बट हम सीधे अपने परफॉर्मेंस पे फोकस करते हैं कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। तो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी आ जाती है। सोशल एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जब परफॉर्मेंस कम और ज़्यादा हो रहा है तो हमको सभी जगह से थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक मिलने लगता है, क्रिटिसिज्म भी मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम अपनी कैपेसिटी और परफॉर्मेंस को, रेशो को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, है ना। तो अब हमको डर लगने लगता है लोगों से बात करने में, अपने आइडियाज़ फॉरवर्ड आगे रखने में, अपने मैनेजर्स हैं या अपने सुपरवाइजर्स हैं उनसे खुल के अपने आइडियाज़ डिस्कस करने में कि देखिए ये मेरे आइडिया हैं, ये मैं करना चाहता हूँ, नहीं हम कर पाते हैं। हम अपनी बाउंड्रीज मेंटेन नहीं कर पाते, जैसा मैंने कहा कि फिर हम अपनी फैमिली टाइम में भी हम काम करने लगते हैं। दैट इज़ ऑल्सो बहुत बड़ा रीज़न है एंग्जाइटी का। जनरल एंग्जाइटी का भी ये बहुत बड़ा रीज़न है। फिर एक फिनोमिना होता है जिसको हम सब आजकल बहुत सुनते हैं, इम्पोस्टर सिंड्रोम, जो कि होता है कि अपनी खुद की कैपेसिटी पे डाउट करना। और बहुत टाइम ऐसे लोग जिन्हें इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है, इट साउंड्स फनी बट दे स्टार्टेड फीलिंग कि मैं इतनी कैपेसिटी तो है नहीं जितना मुझे काम मिल रहा है, और मैं लोगों को चीट कर रहा हूँ, आई एम अ चीटर, और एक दिन तो आएगा जिस दिन मेरी पोल खुल जाएगी। तो अब जब ये एंग्जाइटी रहती है ना, तो वो बंदा उसी चीज़ में पूरे समय लगा रहता है कि शायद मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं ये काम क्यों करूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। सो दिस इज सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है। सेल्फ डाउट। तो दिस इज हाउ वी कैन से कि एंग्जाइटी एट वर्क प्लेस हमको इस तरीके से अफेक्ट करती है। ओके, तो खैर ये है तो बहुत इंटरेस्टिंग, और मेरे ख्याल से जितने भी वर्किंग लोग हैं वो अगर इसे सुन रहे हैं तो मेरे ख्याल से इसको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आगे मेरे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, लेकिन फिलहाल मेघा वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद हम मिलेंगे और करेंगे मेघा से और भी इंटरेस्टिंग बातें आपके वर्क प्लेस की एंजाइटी से रिलेटेड। तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा काम है, आपको ट्यून करके रखना है रेडियो एप्सा और सुनते ही रहना है, कहीं पर भी जाना नहीं है। ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे। शो का नाम है सब कुछ मुमकिन है, और मैं यानी वापस आऊंगी। टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड टू रेडियो एप्सा 91.2 FM, जो कह दिल की बात मेरे यानी वानी के साथ। रेडियो एप्सा 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं मुझे यानी वानी को, और मैं आ गई हूँ शो लेकर बहुत इंटरेस्टिंग सा सब कुछ मुमकिन है, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं बहुत ही रिनाउंड साइकोथेरेपिस्ट से, जो कि हैं मेघा कल्चुरी मैम, और जो हमें बता रही हैं कि भाई आपके वर्क प्लेस पे जो एंजाइटी है वो किस तरीके से काम करती है, और एग्जैक्टली वो एंजाइटी है या नहीं है। क्योंकि आजकल बड़ा कन्फ्यूजन सा हो रहा है ना मेघा, कि सबको ऐसा लगता है कि एवरीवन हैज़ सर्टेन एंजाइटी, कुछ छोटा सा फियर भी होता है तो वो भी उनको ऐसा लगता है कि ये एंजाइटी में है, मतलब ये एंजाइटी ही है। तो अगर हम वर्क प्लेस की ही बात करें, क्योंकि अभी हम स्पेसिफिकली यही बात कर रहे हैं वर्क प्लेस की, तो उस समय पे हर इंडिविजुअल का क्या इम्पैक्ट रहता है, मतलब एंजाइटी का क्या इम्पैक्ट होता है, और ये किस तरह से आपके अलग अलग प्रोसेस को इम्पैक्ट करता है। जैसे आपकी डिसीजन मेकिंग है या कोई भी चीज़ अगर आप डिसाइड कर रहे हैं तो उस पर कैसे इम्पैक्ट डालता है? जी ज़रूर। एंग्जाइटी की अगर हम बात करें तो बहुत सिग्निफिकेंटली ये हमें अफेक्ट करती है वर्क प्लेस पे, जिस पे हम कहते हैं कॉग्निटिव फंक्शनिंग, जिसको कह सकते हैं कि हमारी सोचने समझने की क्षमता, इसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर देती है। हम इतनी बातें सुनते हैं बट याद नहीं रख पाते हैं, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान तो एंग्जाइटी में लगा हुआ है। हम इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि एक ज़रूरी काम के लिए जो मुझे इन्फॉर्मेशन याद रखनी थी वो अवेलेबल ही नहीं है मेरे दिमाग में, मुझे याद ही नहीं है कि वो क्या करना था, एंड दैट्स हाउ मेरा काम भी बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। वो इम्पैक्ट जो इम्पैक्टफुल काम होना चाहिए उसका कहना चाहिए क्वालिटी इज़ डिग्रेडेड। प्रोक्रेस्टिनेशन एंड अवॉइडेंस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि अब मुझे एंग्जाइटी है
तो अब मुझे अपना काम बेस्ट करना है, या तो मुझे करना है तो बेस्ट करना है, या तो मुझे तब तक टालना है जब तक मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच जाऊं जो मुझे लगता है कि रिजेक्ट नहीं होगा। इस कारण ये होता है कि हम काम टालते जाते हैं क्योंकि मुझे ये डर है कि अभी मैंने अगर कम लेवल में कर लिया विद जो मैंने सोच के रखा उससे कम में कर लिया तो वो अब उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो काम बढ़ता जाता है जिसको हम कहते हैं पाइल अप वर्क बहुत हो जाता है, हम अपने प्रोजेक्ट की डेडलाइन मिस कर देते हैं। एंड अगेन अगर आप देख रहे हो हमने प्रोजेक्ट की डेडलाइन मिस कर दी तो हमारे अंदर वो भी थॉट आ जाता है कि भैया आप तो इतने कैपेबल ही नहीं हो जो टाइम पे प्रोजेक्ट कर सकते हो। कम्युनिकेशन हमारा बहुत गड़बड़ हो जाता है जिसको हम कहते हैं इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन। मतलब हम अब क्योंकि मुझे डर भी लग रहा है, मुझे ये है कि मैं अपने कोई भी थॉट्स सामने लोगों को बताऊं तो पीपल विल नॉट अप्रूव इट, लोगों को पसंद नहीं आएंगे, तो हम चुप रहना चालू कर देते हैं, मीटिंग्स में अपने ओपिनियन नहीं देते हैं। या मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काम है, अभी मुझे बॉस ने ये काम असाइन किया है, अब इस काम के लिए मुझे वापस जाके पूछना है, थोड़ा गाइडेंस लेना है, पर मैं बॉस के पास जाऊंगी तो वो मुझे कहेंगे कि यार कितने तुमको इतना सा काम नहीं आता है, तो आई विल नॉट टॉक, है ना। सो दिस इज़ हाउ हमारे कम्युनिकेशन भी हमारा इफेक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट एंग्जाइटी कि शायद मुझे ये काम नहीं आता है तो लोग क्या सोचेंगे। क्रिटिसिज्म हम सहन नहीं कर पाते, थोड़ा सा फीडबैक भी हमें बहुत बुरा लग जाता है और इसके कारण हम इनिशिएटिव ही नहीं लेते हैं, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें हैं। और अगर जिसको कहना चाहिए इस वजह से हम बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज्म में भी जाते हैं कि हम अपना ना काम का लेवल इतना हाई कर लेते हैं कि इतना अच्छा ही काम होना चाहिए, क्योंकि जब मैंने इतना अच्छा काम करना है तो कोई आके मेरे काम पे उंगली नहीं उठाएगा। और उस परफेक्शनिज्म के कारण हमारा ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि चीज़ें डिले भी होती जाती है। डिले तो होती हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन कम्स फ्रॉम परफेक्शनिज्म कि हमको अब बेस्ट काम चाहिए तो हम डिले करेंगे तो काम पाइल अप होगा, और जब काम पाइल अप होगा तो ऑफकोर्स हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, और उस कम प्रोडक्टिविटी के कारण फिर हमारा जो रिजल्ट आएगा जिसमें हम फिर खुद को ही बैठ के ब्लेम करेंगे कि तुम्हें तो काम बहुत कम आता है। तो यू सी द साइकिल इज स्टार्ट फ्रॉम हियर, द एंग्जाइटी, देन कॉग्निटिव डिसफंक्शनिंग जिसमें हम अपना सोचने का, जिसमें हमारा काम करने की क्षमता ऑटोमेटिकली कम हो गई क्योंकि हमने डिवाइड कर दिया अपना अटेंशन, है ना। इट्स नॉट कि मेरा कैपेबिलिटी कम है, हम अटेंशन डिवाइड कर दिए, प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, कम्युनिकेशन हमारा बहुत प्रॉपर नहीं है और हम बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं और परफेक्शनिज्म की तरफ जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे काम पे इफेक्ट पड़ता है। और डिसीजन मेकिंग में भी यस डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब मुझे डिसीजन लेना है तो मैं डिसीजन लेने से ज़्यादा उसके होने वाले रिजल्ट के बारे में सोचती हूँ कि ये मैंने डिसीजन लिया, इसका रिजल्ट क्या आएगा। और मोस्टली हमारा ध्यान जाता है रिजल्ट के नेगेटिव साइड पे कि शायद ये रिजल्ट होगा जो कि मुझे और ज़्यादा एंग्जाइटी देता है, तो फिर अब मैं वो डिसीजन लेना चाहूँगी जिसमें कम रिस्क हो। हमारी रिस्क टेकिंग कम, रिस्क टेकिंग कम हो जाती है, कम रिस्क होना चाहिए जिससे मेरा रिजल्ट एक मीडियोकर भी होगा तो मुझे पता है एटलीस्ट फेलियर तो नहीं है। तो डिसीजन मेकिंग तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है एंग्जाइटी से। ओके, कोई एक एग्जांपल देकर अगर आप बता सकें कि किस तरीके से ये इम्पैक्ट डालता है, मतलब एक प्रोफेशनल उसमें। हाँ, मेरे पास था ऐसा एक केस पिछले कुछ समय पहले। दैट पर्सन वाज वर्किंग इन IT ओनली। तो जब उनको एंग्जाइटी होती थी, ही इज़ अ वेरी गुड लाइक वेरी टैलेंटेड इंडिविजुअल इफ वी टॉक अबाउट एकेडमिक्स, परफॉर्मिंग एवरीवेयर, अचीविंग एवरीवेयर, बट वर्क प्लेस पे एंग्जाइटी हिट हिम एट वंस बिकॉज ऑफ ओवरवर्किंग ऑल्सो। एंड ओवरवर्क तो आपका बर्नआउट होता है और फिर आप थोड़े कम करने लगते हो काम और लूज हो जाते हो, उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं करते हो। सो अटेंडिंग मीटिंग वॉज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, क्योंकि अब मीटिंग अटेंड होगी तो काम असाइन होगा मतलब मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा और डिसीजंस लेने पड़ेंगे। और उस समय मुझे ये प्रॉब्लम होगी शायद आई माइट गेट फेल, तो बेस्ट काम क्या करना है, मुझे मीटिंग नहीं अटेंड करनी है। और मीटिंग नहीं अटेंड करनी है तो अब हर दिन तो मैं ये बोल नहीं सकता हूँ तो मैं बीमार हूँ, आज मैं बीमार हूँ, कल मैं बाहर हूँ। और दिस इज हाउ अवॉइडेंस एंड दिस अवॉइडेंस लीड्स टू इवन लीव विदाउट पे एज वेल, क्योंकि मुझे मीटिंग अटेंड नहीं करनी है और मुझे काम नहीं करना है, क्योंकि काम इज एसोसिएटेड विद माय परफॉर्मेंस और मैं तो हाईएस्ट अचीवर हूँ, अब मैं कैसे कम परफॉर्म कर सकता हूँ। सो दिस हार्ड एंग्जाइटी हिट्स एक्चुअली। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा रोल जो है वो इम्पैक्ट मेरे ख्याल से करता है। अगर आप वर्क प्लेस पे हैं और आपको आइडेंटिफाई हो गया तो ठीक है, लेकिन नहीं आइडेंटिफाई हुआ तो इस तरह से आप अवॉइड चीज़ों को करते जाते हैं। तो इसको जैसे ट्रिगर भी होता है ये एंजाइटी, राइट? तो वो कैसे होता है वो भी जानेंगे, लेकिन मेघा अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो ब्रेक के बाद हम करेंगे बातें और जानेंगे कि ये जो एंजाइटी जो है वो कैसे आपको ट्रिगर करता है और
आप कैसे उससे बच सकते हैं। तो अगर आप काम कर रहे हैं या इवन आप काम नहीं भी कर रहे हैं, आप घर में भी रह रहे हैं, तो भी आपको एंजाइटी हो सकती है। तो इसके बारे में डिटेल में हम और भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद मैं लेकर करूँगी और भी बातें मेघा के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए रेडियो एप्सा 91.2 FM पर और सुनते रहिए मुझे यानी वानी को। और शो का नाम नहीं भूलना है, शो का नाम है सब कुछ मुमकिन है। रेडियो एप्सा 91.2 FM पर मैं आने वाली एक बार फिर से आ गई हूँ शो लेकर सब कुछ मुमकिन है, जहाँ पर हम कर रहे हैं बातें मेघा कलचुरी मैम से, जो कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस साइकोथेरेपिस्ट है और जो हमें बता रही हैं कि भाई एंजाइटी जैसी जो चीज़ है वो कैसे होती है, वर्क प्लेस पे स्पेसिफिकली कैसे होती है। ब्रेक से पहले हमने बहुत सारे ट्रिगर्स के बारे में जाना था और मेघा जैसे कि आपने ब्रेक से पहले बताया था कि कैसे एंजाइटी ट्रिगर होती है और बहुत सारे रीजंस रहते हैं, राइट। तो अब हमें पता तो चल गया है कि एंजाइटी ट्रिगर कहाँ से हो रही है। तो ये जो ट्रिगर्स पता चल जाते हैं उसके बाद हाउ दीज आर हेल्पफुल टू मैनेज दी एंजाइटी इन अ मोर बेटर वे, कैसे और अच्छे से इसको बेटर मैनेज कर सकते हैं। सो जब हम ट्रिगर की हमने बात कर ली, हमें समझ में आ गया हमारे ट्रिगर क्या हैं और हम रिकग्नाइज कर रहे हैं अपने ट्रिगर। सो फॉर गेटिंग बेटर, किसी चीज़ को सुधारने का सबसे पहला कदम क्या होता है? एक्सेप्टेंस, कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तभी हम उसको सुधारने की काम कर पाते हैं, राइट। तो जब हम अपने ट्रिगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इट मीन्स वी आर एक्सेप्टिंग कि मुझे तो ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे इसको ठीक करना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही टाइम लगता है। बहुत केसेस में मैंने ऐसा देखा है, कुछ साल पहले की बात है, मेरे पास एक वेरी यंग एज लाइक 23 ईयर ओल्ड की बच्ची आई थेरेपी के लिए एंड शी स्टार्टेड हर सेंटेंस। उसका सेंटेंस ही ये था, मैम मेरे जैसे इंसान को एंजाइटी हो सकती है। तो मैंने कहा ओके डिफाइन, आपके जैसा इंसान मतलब क्या है? मैं आपको जानती नहीं हूँ, तो मुझे बहुत सपोर्ट रहेगा कि अगर आप मुझे बताओ। तो उसने मुझे बताया मैं बहुत केयरलेस हूँ, मैं दूसरों की बहुत हेल्प करती हूँ, मैंने इतने लोगों के काम किए, मैं ही दूसरों की काउंसलिंग करती हूँ, तो मेरे जैसे इंसान को एंजाइटी कैसे हो सकता है। तो उसको 3 से 4 सेशन इस एक्सेप्टेंस में ही लगे कि मुझे एंजाइटी है। तो जब हम इस सबसे पहला कदम होता है एक्सेप्टेंस, देन फाइंड आउट कि मेरे ट्रिगर क्या हैं। जैसा मैंने कहा कि हर किसी के ट्रिगर अलग भी हो सकते हैं और एक को बहुत सारे ट्रिगर्स भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही ट्रिगर होगा। तो जब हम ट्रिगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम उसको मैनेजमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि ठीक है ये मेरा ट्रिगर है, इसको कैसे मैनेज करना है। फिर हम जाते हैं नेक्स्ट मोमेंट विच इज सीकिंग सपोर्ट, दूसरों से हेल्प मांगना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर होता है, मैं पहले आपको प्रोसेस बताती हूँ क्योंकि मैं प्रोसेस फॉलो करती हूँ, फिर मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फिर जब हमको पता है कि अब मुझे हेल्प लग रही है यहाँ पे, तो हम अपने लिए बाउंड्रीज भी सेट कर लेते हैं। फिर हम अपने सेल्फ केयर के लिए भी काम कर लेते हैं एंड देन वी स्टार्टेड एडवोकेटिंग, मतलब हम इसके बारे में लोगों से बात करते हैं क्योंकि हमको लगता है कि अब ये मैंने इतना सफ़र किया तो यार मैं किसी और के लिए कुछ अच्छा तो कर सकता हूँ। तो जब हम कहते हैं आइडेंटिफाई ट्रिगर, मतलब पता लगाना कि मुझे कौन सी चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है या किस वजह से मुझे एंजाइटी हो रही है। सो से एग्जांपल, एक XYZ एम्प्लॉय है एक कंपनी में जिसका पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम है ना। अब उसको पता चल गया कि मैं जब भी पब्लिक स्पीकिंग के पहले तो बिकॉज वो कंपनी है और हर दिन वो लोग प्रोजेक्ट अपने प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं और कभी कभी वो भी देता है, तो उसको उस समय ये नहीं समझ में आ रहा है कि एंजाइटी इसी से हो रही है। बट धीरे धीरे समझ में आता है कि जिस भी दिन मेरा प्रेजेंटेशन होता है मतलब ये मेरे लिए ट्रिगर है, मतलब मुझे पब्लिक स्पीकिंग का डर है क्योंकि शायद मैं गलत बोल सकता हूँ, लोग हंसेंगे या मैं बहुत अच्छे से नहीं बोल पाऊंगा। तो ये हो गया उसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रिगर कि पब्लिक स्पीकिंग की या प्रेजेंटेशन की बात आ रही है तो मुझे डर लगना चालू हो रहा है। जिस दिन भी ऐसा कोई काम होता है मैंने डर के कारण छुट्टी कर ली या मैंने बहाना बना दिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और मैं बच गया। तो जब ये आइडेंटिफिकेशन हो गया, नेक्स्ट इज लुकिंग फॉर कि हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, है ना। डेफिनेटली इसके लिए सॉल्व करना और सीकिंग हेल्प इट्स ऑल टुगेदर सिमिलर। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उस बंदे को मैंने सजेस्ट किया गो एंड टॉक टू योर मैनेजर कि भाई मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है बट मैं ऑल्सो एज अ एम्प्लॉय मैं प्रोग्रेस भी करना चाहता हूँ, तो मैं इसमें कैसे करूँ। बिकॉज आपके सुपरवाइज़र आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो वो आपको गाइड कर सकते हैं क्या करना है। तो उन्होंने कहा मैं सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ, मैं आपके साथ में एक बंदे को, और उसने खुद ने कहा हु वाज माय क्लाइंट कि सर इफ मेरे को कहीं सपोर्ट होता है इट मीन्स कि मैं कहीं अटकता हूँ, मेरा सबसे बड़ा डर है कि मैं अटक सकता हूँ, ब्लैंक आउट हो जाऊँगा, तब क्या होगा। तो आप मेरे को एक सपोर्ट दे दो कि जहाँ मैं रुकूँ सामने से मुझे कोई सपोर्ट कर ले। दिस इज कॉल्ड सीकिंग हेल्प। तो देयर इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ दैट पर्सन हु इज़ इन द सेम टीम। दे डिसाइडेड कि भाई तू जहाँ अटकेगा मैं तुझे तो सपोर्ट करूँगा।
तो बिलीव मी, द डे वी प्लान दिस एक्सपेरिमेंट, वो उस दिन किसी भी दिन नहीं किसी भी जगह पे नहीं अटका, एंड ही थॉरोली कुड परफॉर्म, क्योंकि उसका डर ही ये था कि मुझे एंग्जाइटी, अटक जाऊंगा तो उसकी एंग्जाइटी थी। उसका फ्रेंड बैठा हुआ था सपोर्ट करने के लिए, उसको वो अटका ही नहीं, कहीं भी रुका नहीं। इसके बाद होता है सेट बाउंड्रीज, कि पहले क्या होता था, जिस चीज़ में उसको डर लगता था वो मना नहीं कर पाता था कि आई कैन टेक सम टाइम और मैं अपने आप को बेटर कर लूँ, या ओवरबर्डन विद द वर्क। तो ये बाउंड्रीज सेट करना इज़ ऑलवेज हेल्पफुल। फिर आता है सम सेल्फ केयर, कि हम सेल्फ केयर में कितना इन्वॉल्व हैं। जो मैंने, जैसे हम अभी बात ही कर रहे थे ब्रेक में, कि डूइंग माइंडफुलनेस प्रैक्टिस एंड डीप ब्रीदिंग, taking care of yourself in terms of good sleep, nutrition, food, and a healthy physical exercise to keep yourself healthy. This also is very helpful जब हमें पता है कि मुझे किस चीज़ से ट्रिगर हो रहा है। इसके बाद आता है एडवोकेट दिस, मतलब आप अपनी कंपनी में बात करिए, क्योंकि आज की डेट में सभी कंपनीज में एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट प्रोग्राम के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वेलनेस सेंटर है, एंड कंपनीज बहुत सारे वर्क प्लेस ऑप्शंस पे अरेंज करते हैं मेंटल वेलबींग के सेमिनार्स एंड वर्कशॉप, जिसमें से मैं बहुत सारी जगह जाती हूँ लेने के लिए, बिकॉज दैट इज़ हाउ आई केम टू नो दिस, कि ऑलमोस्ट सभी कंपनीज हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ये सभी ऑर्गेनाइज कर रही हैं। तो जब हम खुल के बात करते हैं तो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, है ना। तो इस तरीके से हम आफ्टर नोइंग ट्रिगर्स, इट्स वेरी हेल्पफुल कि हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। ओके, और मैनेज कर लेते तो मेरे ख्याल से और वो एंजाइटी बढ़ने से कहीं ना कहीं रुक जाती है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, देखिए, इस बारे में मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि मैं अपने क्लाइंट्स को भी ये कहती हूँ कि एंजाइटी, जिसको हम कहते हैं डर, है ना, और उदास होना, या ये सारे इमोशंस, ये हमारी लाइफ का हिस्सा है। हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते कि बिना डर के तो हमारी ज़िंदगी नहीं हो सकती। इट विल बी देयर। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जब वो मोमेंट आएगा जहाँ मेरे को एंग्जाइटी फील होती थी और मैं अपना काम बिगाड़ देती थी, उस जगह पे मैंने मैनेज करना सीख लिया। वैलिडेटिंग कि एंग्जाइटी तो होगी, अब इसको कैसे ठीक करना है, दिस इज व्हाट वी कैन वर्क ऑन। ट्रू, है ना, बिल्कुल सही है। तो मैनेज करना इज मोर और लेस उसका सोल्यूशन ही है। जी, आप बिल्कुल। इसको कैसे आगे मतलब ले जा सकते हैं और उसको कैसे अपने चीज़ों में मैनेज कर सकते हैं, मतलब स्ट्रेस को भी मैनेज कर रहे हैं, एंजाइटी को भी मैनेज कर रहे हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैनेजमेंट इज द मीडियोकर वे, मतलब इसको मैनेज कर लीजिए, क्योंकि होना तो है ही। आई वुड से मैनेजमेंट इज द बेस्ट वे। यस, आई एम अ मैनेजमेंट ग्रेजुएट टू। ट्रू। तो मेघा, अभी और भी कुछ सवाल है जो मुझे पूछना है, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो ब्रेक के बाद हम करेंगे और भी बातें मेघा के साथ, और बहुत सारी चीजें और भी जानना बाकी है। तब तक के लिए आप ट्यून करके रखिए रेडियो इप्सा 91.2 FM और सुनते रहिए मुझे यानी वानी को, और शो का नाम है सब कुछ मुमकिन है। रेडियो इप्सा। हेलो एंड वेलकम बैक अमेजिंग लिसनर, आप सुन रहे रेडियो इप्सा 91.2 FM और मैं यानी वानी एक बार फिर से आ गई हूँ आपके लिए सब कुछ मुमकिन है लेकर, जहाँ पर हम कर रहे हैं बहुत ही रेनाउंड साइकोथेरेपिस्ट से बात, जो कि है मेघा कलचुरी, और जो हमें बता रही हैं कि आपकी वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो कैसे, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी एंजाइटी, आपके डिप्रेशन, आपका फियर, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मेघा से मैं बात कर रही थी और इन्होंने बताया था कि किस तरीके से वर्क प्लेस पे जो है एंजाइटी एक बहुत इम्पैक्ट करती है, और स्ट्रेस और एंजाइटी डिफरेंट रहती है। स्ट्रेस एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है, एंजाइटी बनी रहती है, राइट। तो मेघा, जैसा कि आपने बताया कि वर्क प्लेस पे एंजाइटी होता है, आपने एक केस भी बताया, तो बेसिक एक कॉमन चीज़ें रहती होंगी ना जिसके कारण ये एंजाइटी ट्रिगर हो जाती है। तो वो कौन से ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जिसके कारण एंजाइटी ट्रिगर होती हैं? जब हम ट्रिगर की बात करते हैं ना, तो ट्रिगर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सब्जेक्टिव है, हर इंडिविजुअल के अलग अलग हो सकते हैं, बट फिर भी हम बहुत सारे केसेस देखते हैं, उनके बेसिस पे हम कुछ कॉमन ग्राउंड्स की बात करते हैं कि दिस माइट बी द ट्रिगर एट वर्क प्लेस, है ना। जिसमें सबसे पहला होता है वर्कलोड। बहुत ज़्यादा वर्कलोड मतलब परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आएगा, और परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आता है तो हमको ऑब्वियसली नेगेटिव फीडबैक्स मिलते हैं। कभी हो चुका रहता है पास्ट में, या हम अपने किसी कलीग के साथ देखते हैं कि यार इसके साथ ये हो रहा है, एंड देन आई एम गेटिंग अ प्रोजेक्ट असाइन, तो मुझे उस वर्कलोड का भी स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाएगा कि यार अब मेरे पास इतना सारा काम है, तो मुझे लगता है कि शायद मेरा भी यही होगा और मेरा भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा। तो इट्स वेरी एंटिसिपेटरी थिंग ऑल्सो कि हम सोच के बैठ गए कि शायद मेरा भी काम बहुत अच्छा नहीं जाएगा बिफोर वी स्टार्टेड। दूसरी चीज़ होती है परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन, कि बॉस ने या कंपनी में मुझे काम मिल गया कि अब तुम्हें इतना परफॉर्म करना है। सो परफॉर्मेंस वर्सेस वी
हम खुद के लिए भी गोल सेट कर लेते हैं कि परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा ही होना चाहिए। व्हेन इट कम्स परफॉर्मेंस ना, जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हम सभी को लगता है हम सभी को परफॉर्म करना चाहिए। वी डोंट टेक वर्ड एज अ कि ठीक है हमें काम करना है, वी जस्ट टेक इट एज अ नहीं समझते मतलब उसको परफॉर्मेंस, तो परफॉर्म ही करना है हमें और मतलब अच्छा ही होता है, अच्छा ही परफॉर्म करना है, मतलब तो वो बैड परफॉर्मेंस हम कभी इसको ऐसे नहीं लेते हैं कि परफॉर्मेंस कैन बी परफॉर्मेंस इज ऑल्सो, इट इज नेवर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है अच्छा या बुरा। हम देखते हैं ना कॉन्टिन्यूम होता है जिसमें हम अच्छे से अच्छा बुरा या बुरे से अच्छा तक जाते हैं, रेटिंग जिसको हम कहते हैं, राइट। तो हम में से हर कोई, मोस्ट ऑफ द पीपल वी डोंट अंडरस्टैंड कि हम बीच में भी कहीं आ सकते हैं। हम खुद को क्या कहते हैं, या तो अच्छा परफॉर्मेंस होगा या नहीं, वो बहुत बड़ा ट्रिगर होता है एंग्जाइटी के लिए। फिर होता है जॉब इनसिक्योरिटी, रोज़ हम न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं या जैसा माहौल होता है, कभी कभी बॉस भी चिल्ला देते हैं ऐसे करोगे तो तुम्हें निकाल देंगे, ऐसे करोगे तो तुम्हें ना PIP में डाल देंगे, तुम्हारा बहुत जल्दी यहाँ से हो जाएगा काम खत्म। तो दैट इज़ ऑल्सो ट्रिगर कि काम मिला है, काम अच्छा नहीं किया है तो जॉब इनसिक्योरिटी हो गई है मेरी, है ना, तो जॉब जा सकता है। फिर हम जैसे बात करते हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं होना, जहाँ पे इवन मिस्टेक्स भी होती हैं। ऑफ कोर्स हम काम कर रहे हैं तो मिस्टेक्स तो हम अवॉइड करना चाहेंगे क्योंकि हम मिस्टेक करता है। हाँ बट एक प्रोसेस होता है कि मिस्टेक की है, अंडरस्टैंड कि वो मिस्टेक कितनी बड़ी है, छोटी भी हो सकती है और उससे हम सीख के अपना काम इम्प्रूव करते हैं, और बेसिकली यही प्रोसेस होता है। अगर आपने पहली बार कहीं ज्वाइन किया या मैंने किया है तो वाइल मेकिंग मिस्टेक्स ओनली वी हैव बीन इम्प्रूव्ड, और हमने अपना काम बहुत अच्छा किया है। तो जब कभी भी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं तो वर्क प्लेस पे बैठ के एम्प्लॉय को समझाया नहीं जाता है कि भैया ये मिस्टेक किया अब मत करना, या इसको ऐसे इम्प्रूव कर सकते हो। सो नो कम्युनिकेशन अबाउट मिस्टेक ऑल्सो इनहेंस दी और इंक्रीज दी एंग्जाइटी। एक लेग पुलिंग भी करते रहते हैं। हाँ बहुत ज़्यादा, तो जिसको हम कहते हैं बहुत अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं होना। देन वर्क प्लेस इन्वायरमेंट की बात तो हो गई, फिर हमारी बात होती है लोगों का कहना चाहिए कि सपोर्ट एंड नॉट ओपनली टॉक अबाउट इट, कि मुझे ये काम से एंग्जाइटी हो रही है, ये मैंने बताया नहीं और मैंने काम ले लिया और बर्डन हो गया, और मैं अपने मैनेजर को नहीं बता रही हूँ, दे आर स्टार्टेड गिविंग मी वर्क जो कि मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है। उसकी एंग्जाइटी एक अलग ही लेवल की एंग्जाइटी होती है, क्योंकि मैंने अब बताया भी नहीं है। से फॉर एग्जांपल मुझे प्रेजेंटेशन देनी है या कहीं पे खड़े होके पब्लिक स्पीकिंग करनी है, अब ये मेरे लिए बहुत ही डरावना काम हो सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उसको इतनी एंग्जाइटी लेवल हाई होगा, पर वो बंदे ने कम्युनिकेट ही नहीं किया कि मुझे ये काम नहीं करना है, या इसके लिए उसने सपोर्ट नहीं मांगा कि सर मुझे इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो मुझे थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करिए, या सर ने बैठ के बात नहीं की कि आप कर लोगे या नहीं। तो एंग्जाइटी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया इस वजह से, है ना। माइक्रो मैनेजमेंट, जो आपने कहा लेग पुलिंग, कि हम हर काम पे ऐसे करना है, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, टोका टाकी जिसको हम बहुत जनरल भाषा में बोलते हैं, है ना। और काम करने के बाद हम, एक होता है फीडबैक देना कि भैया ये काम आप इतना अच्छे से कर रहे हो, इसको और अच्छे से करोगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। ये पॉजिटिव फीडबैक कोई नहीं देता है, जैसा आपने कहा लेग पुलिंग। नेगेटिव फीडबैक भी, मतलब नेगेटिव फीडबैक देने का भी एक तरीका होता है, जो हम में से बहुत सारे लोगों ने सीखा नहीं है। सरकाज़म ज़्यादा बहुत ज़्यादा होता है, एंड दे ऑलवेज पुल अदर्स डाउन कि आपने अच्छा नहीं किया, तो और वर्ड्स यूज़ करते हैं लोग बहुत, लाइक आई डोंट वांट टू यूज़ इट, बहुत बेवकूफ़ हो, बहुत स्टूपिड हो, तुम्हें इतना सा काम नहीं आता है, इतना पढ़ के आए हो पर तुम्हें इतना सा नहीं आता है। ऑल दीज वर्ड्स आर द जनरेटर ऑफ एंग्जाइटी। फिर एक और होता है, पता है, एक ट्रिगर जिसको हम वर्ड को हम यूज़ करते हैं बहुत पॉजिटिवली, विच इज़ वर्क लाइफ बैलेंस, पर ये भी बहुत बड़ा ट्रिगर है एंग्जाइटी के लिए, क्योंकि अब मेरे दिमाग में कि मुझे वर्क लाइफ बैलेंस करना है पर काम ज़्यादा है, अब मैं उस स्ट्रेस में हूँ कि मुझे बैलेंस करना है। तो वो एक बहुत बड़ा एंग्जाइटी के लिए स्ट्रेसर है कि मुझे वर्क लाइफ बैलेंस भी करना पड़ता है। इट्स लाइक ऑलवेज वर्क एंड लाइफ इज टू साइड ऑफ दैट, हम कहते हैं तराजू के दो हिस्से हैं, कभी ये ज़्यादा होगा कभी ये होगा, एकदम बैलेंस तो कभी भी नहीं होता है ना। तो हमको ये समझने की ज़रूरत है, बट जब हम, फिर वही बात है, जब हम बैलेंस की बात करते हैं तो हमें बैलेंस ही चाहिए, तो बैलेंस करने के लिए भी एंग्जाइटी होती है। फिर ये होता है कि हम, क्योंकि अपने काम की एंग्जाइटी के कारण अपनी फैमिली को भी टाइम कम दे पा रहे हैं, तो फैमिली की तरफ से भी थोड़ा सा सपोर्ट कम हो जाता है, या फैमिली इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इश्यूज ऑल्सो कम अलॉन्ग हमारे काम पे, और वो भी एंग्जाइटी जनरेट करते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं बैठ के काम तो कर रही हूँ, पर मेरे दिमाग में ये चल रहा है क्योंकि मैंने 3 दिन से घर पे टाइम नहीं दिया है, तो अभी मुझे काम खत्म करना है, दैट इज़ क्रिएटिंग अनदर लेवल ऑफ प्रेशर, है ना। तो वो प्रेशर इज़ ऑल्सो एंग्जाइटी के लिए ट्रिगर है मेरे लिए। फिर जैसे कुछ लोग नो भी नहीं बोल पाते। हाँ, तो saying no is also not able to set boundaries, जिसको हम कहते हैं कि अगर मैंने बाउंड्रीज सेट नहीं की है,
आप मेरे कलीग हो, आप कह रहे हो मैं जल्दी जा रही हूँ, प्लीज़ मेरा ये काम कर देना, है ना, और मुझे भी जाना है टाइम पे, पर मैं अब आपको ये नहीं कह पा रही हूँ कि देखो मुझे काम नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे जल्दी जाना है, जो आपने कहा नो नहीं कह पा रहे हैं, काम बढ़ा लिया, एंग्जाइटी इंक्रीज दोनों लेवल पे, वर्क लेवल पे भी और पर्सनल लेवल पे, क्योंकि घर के लोगों को बोल के रखा है मैं आज जल्दी आने वाली हूँ, है ना, तो बाउंड्री हम सेट नहीं कर पा रहे हैं। फिर एक होता है क्योंकि अब हम एंग्जाइटी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी ट्रिगर कर रही होती है लोगों को, तो इसके कारण लोग चिड़चिड़े, आइसोलेट हो जाते हैं, तो लोगों से बात नहीं करना, है ना, और आइसोलेशन। अब आप देखोगे कि अगर मैं बात नहीं कर रही हूँ, मेरे 3 कलीग खड़े होकर बात कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो गिव्स मी एंग्जाइटी कि नाउ आई एम आउट ऑफ द ग्रुप। हाँ, ये होता है, बहुत लोगों के साथ होता है, एंड पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि अब किसी को मैं पसंद नहीं हूँ, सब अपने में बात कर रहे हैं, नोबडी इज माय फ्रेंड, एंड दैट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ एंग्जाइटी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले केस आपसे डिस्कस किया, उसमें इट वाज द एपिक एग्जांपल ऑफ ऑल दिस ट्रिगर्स कि लोग मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि मैं मीटिंग अटेंड नहीं करता हूँ, मैं काम नहीं लेता हूँ, तो नोबडी इज माय फ्रेंड एंड आई एम नॉट लाइकेबल बाय ऑल। तो ये सारे ट्रिगर्स होते हैं हमारी लाइफ में, जो कि वर्क प्लेस पे एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं। बहुत सारे ट्रिगर्स हैं और इसको मैनेज करना कुछ और भी हो सकते हैं जो आई माइट बी मिसिंग राइट नाउ। हाँ, पर ये होते हैं एग्जैक्टली, मतलब अगर कोई आप काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आप काम कर रहे हैं, मैं इस पे एक और ऐड करना चाहती हूँ। अब हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ आवर हेल्थ, सो इट स्टार्ट अफेक्टिंग फिजिकली, और जब हम फिजिकली फिट नहीं होते हैं तो वो हर जगह की एंग्जाइटी का ट्रिगर होता है, वेदर इट्स स्टडी, वेदर इट्स वर्क, वेदर इट्स होम। आपको ये लगता है कि अब मैं फिट नहीं हूँ तो मैं तो फिर सारे काम तो कर ही नहीं पा रही हूँ ना, तो वो एंग्जाइटी इज वी कैरिंग अलोंग एवरीवेयर, फिजिकल जिसको हम कहते हैं। तो एक बहुत लंबी लिस्ट है, मतलब अगर आपको एंजाइटी अटैक हो रहे हैं या एंजाइटी हो रही है तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप यहाँ पे आई हैं तो आप इसको मैनेज करना भी बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हमने जाने हैं ट्रिगर्स, लेकिन ब्रेक के उस पार मैं लेकर आने वाली हूँ इसके जो सोल्यूशन है या आप इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, अगर आपने ट्रिगर्स सुन लिए हैं तो एंजाइटी के को कैसे मैनेज करना है वो भी सुनना पड़ेगा आपको। तो बने रहिए 91.2 FM पर मेरी आने वानी के साथ, शो का नाम है सब कुछ मुमकिन है। रेडियो इप्सा। वेलकम बैक अमेजिंग लिसनर, आप सुन रहे रेडियो इप्सा 91.2 FM और मैं आने वाली एक बार फिर से आ गई हूँ आपके लिए सब कुछ मुमकिन है लेकर, और जहाँ पर हमारे साथ है मेघा कलचुरी मैम, जो कि हमें बता रहे हैं कि किस तरह से आपकी वर्क लाइफ में एंजाइटी जो है वो इंटर कर जाता है, और बहुत सी बातें, बहुत इंटरेस्टिंग बातें इन्होंने ब्रेक से पहले बताई है। और हमारे पास और भी सवाल हैं मेघा जी, कि जैसे अभी हमने ब्रेक से पहले बात की कि एंजाइटी जो रहती है, वर्क प्लेस की एंजाइटी जो रहती है वो होती है और कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस के कारण होती है, सेल्फ डाउट के कारण होती है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो देखिए, आप काम कर रहे हैं तो स्ट्रेस तो हो गई, राइट, और स्ट्रेस होगा और उसके कारण एंजाइटी होती है, या फिर एंजाइटी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, और जो वर्क स्ट्रेस रहता है वो भी लोगों को ऐसा लगता है कि वो भी एंजाइटी है। तो अभी भी लोग मतलब कंफ्यूज हैं कि वो वर्क स्ट्रेस है या फिर एंजाइटी है, वर्क एंजाइटी है, वर्क प्लेस एंजाइटी है। तो इसमें कैसे डिफरेंशिएट करना चाहिए? जी, तो हम पहले थोड़े से सिम्टम्स देखते हैं कि जो लोगों में नॉर्मली विजिबल होते हैं। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली वर्क प्लेस एंजाइटी, तो वर्क प्लेस एंजाइटी है तो डेफिनेटली इट विल बी अबाउट वर्क, काम से जुड़े लोगों से और वर्क प्लेस को लेके, है ना। तो जिसको भी एंजाइटी, वो बहुत एग्जॉस्टेड फील करेगा और बहुत एंशियस और वो बहुत ओवरवेल्म, मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं उस चिंता में। और ये हो सकता है वर्क प्लेस पे भी और नॉन वर्किंग आवर्स में भी हो सकता है। काम पे जाते हुए लोगों को डर लगना, काम के बारे में सोच के या काम पे जाने के बारे में सोच के डर लगना। ऐसा भी होता है कि काम हो चुका है, वर्किंग आवर्स खत्म हो चुके हैं, बट हमारा ध्यान पूरे समय काम में लगा हुआ है, उसके अलावा हम कुछ और नहीं सोच रहे। ये भी एक वर्क प्लेस एंजाइटी का एग्जाम्पल है। ओके। एक सिम्टम है जो मुझे किसी और ने, मतलब ऑफकोर्स मेरे पास इतने क्लाइंट आते हैं, उन्होंने बताया कि मैम मुझे पेट में बहुत अजीब सा फील होता है। तो जिसको हम लोग कहते हैं बटरफ्लाई, बट नॉट रियली, ही सेड इट इज़ नॉट बटरफ्लाई, इट इज़, मतलब ऑफकोर्स एवरी इंडिविजुअल हैव देयर ओन वे। तो बहुत अजीब सा फीलिंग, जिसको सिंकिंग इन फीलिंग, जिसको कहते हैं पेट अंदर सिकुड़ रहा है, ये भी होता है जब मैं काम के बारे में सोचता हूँ या मीटिंग्स के बारे में सोचता हूँ, है ना। अब क्योंकि हम आइसोलेटेड हो जाते हैं, डर लगता है काम पे बहुत सारी चीज़ें करने, लोगों से बात करने में, आइसोलेशन, इरिटेशन, और इन सब के कारण इतना लोनलीनेस हो जाता है कि हमको लगने लगता है कि निराशाजनक लाइफ है मेरी, यही कहना चाहिए, है ना। और इस कारण, इस सोच के कारण, इस
बिहेवियर के कारण लाइफ बहुत डल हो जाती है ऐसे लोगों की। तो जब हम बात करते हैं कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी में फ़र्क है क्या, तो देखिए दोनों ही इमोशनल रिस्पॉन्स है, दोनों की दोनों। बट फ़र्क क्या होता है, स्ट्रेस जो होता है उसको एक्सटर्नल ट्रिगर लगता है, समथिंग फ्रॉम आउटर साइड इज़ प्रोवोकिंग स्ट्रेस। जैसे कि वर्क प्लेस में हमको एक काम मिल गया जिसका डेडलाइन बहुत कम है, तो उससे हमारा स्ट्रेस बढ़ गया। या वर्क प्लेस में हमारी कोई फ्रेंड है जिससे झगड़ा हो गया, बुरा लग रहा है, उससे थोड़ा स्ट्रेस बढ़ गया। पर एंग्जाइटी इज़ बेसिकली कमिंग फ्रॉम विद इन, एक्सटर्नल फोर्स नहीं ज़्यादा लगता है। और इट इज़, अगर हमारा कहना चाहिए ट्रिगर भी नहीं है हमारे सामने, हम वर्क प्लेस भी नहीं है, तो भी हम उससे डरे हुए हैं। इट इज़ मोर परसिस्टेंट, लगातार रहता है और थोड़ा ज़्यादा होता है ना। फियर जो रहता है पूरे समय लगातार बना रहता है। अब जब हम बात करते हैं सिम्टम्स की, तो एंग्जाइटी और स्ट्रेस के सिम्टम्स ना ओवरलैप करते हैं, मतलब सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। जिसमें होता है स्लीप पैटर्न में चेंज, इरिटेबिलिटी, मसल्स पेन, है ना, भूख नहीं लगना या नींद नहीं आना, और हाँ सभी तो मैंने बता दिया, ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं एंग्जाइटी और स्ट्रेस में। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे फिर कि ये एंग्जाइटी हो रही है और ये मेरा एंग्जाइटी परसिस्टेंट बनी हुई है। आपने अपना काम से, फॉर एग्जांपल ऐसे बात करते हैं हम कि आपको मैंने एक प्रोजेक्ट दिया है कि मैम ये करना है अपने को। अब वो प्रोजेक्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ है, बट अब वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है 15 दिन बाद, पर हम आज से उसके बारे में सोच रहे हैं। मुझे पता ही नहीं है प्रोजेक्ट क्या है, पर ये पता है कि इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आने वाला है, दैट विल डिसाइड योर परफॉर्मेंस, और उस पर आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। अब आप आज से 15 दिन तक सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हैं, पर पता ही नहीं है क्या है, राइट। दैट इज एंग्जाइटी कि मुझे पता नहीं है। अब प्रोजेक्ट हो गया, राइट, खत्म, अब इवैल्यूएशन होना है, तो अब उस प्रोजेक्ट फिनिश से लेके इवैल्यूएशन के टाइम तक हम फिर उसके बारे में सोच रहे हैं, अगेन मुझे पता नहीं है क्या होने वाला है। तो बेसिकली एंग्जाइटी क्या होता है, हम फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं और अपनी कैपेसिटी उस प्रिडिक्शन का जो रिजल्ट आने वाला है उसके लिए कमतर मानते हैं कि जो रिजल्ट आएगा वो तो मेरा हो ही नहीं सकता, या उतना अच्छा तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी, या अनसर्टेनिटी या जो भी सिचुएशन आने वाली है दैट इज नॉट मैनेजेबल, मेरे से मैनेज नहीं हो सकती, कहना चाहिए। फाइन, मतलब ये दोनों अलग अलग चीज है। स्ट्रेस एक पॉइंट के बाद खत्म हो जाता है और एंजाइटी जो है वो ये कहा जाए अगर सिंपल वर्ड में तो वो बनी रहती है हमेशा। एक फियर फैक्टर जैसा कि आपने बताया कि वो हमेशा आपके अंदर जो है वो बना हुआ रहता है, ठीक है। तो अब जैसे ये तो हमने बातें कर ली कि वो एग्जैक्टली क्या होता है, लेकिन इसके सॉल्यूशंस भी हमें जानने हैं कि कैसे ट्रिगर होता है और क्या करना चाहिए हर इंडिविजुअल को, क्योंकि सबकी एंजाइटी अलग रहती है, सबके परसेप्शंस अलग रहते हैं, तो ये भी मुझे जानना है। लेकिन फिलहाल अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, आप भी ब्रेक ले लीजिए, हाइड्रेट हो जाइए, थोड़ा सा पानी वानी पीजिए, एंजाइटी नहीं रखना है, फियर नहीं रखना है, ये शो सुनते रहना है तो आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी कम होते ही जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा काम है, शो सुनना है, सब कुछ मुमकिन है, और मेरे साथ बने रहना है रेडियो इप्सा 91.2 FM पर। तो टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड टू रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कि दिल की बात मेरे यानी वानी के साथ। रेडियो इप्सा 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं मुझे यानी को, और ब्रेक के बाद मैं आ गई हूँ आपके लिए एंजाइटी से भरा हुआ ये शो लेकर। मतलब एंजाइटी से भरा हुआ तो नहीं कह सकते, लेकिन येस ऑफ कोर्स हम एंजाइटी के बारे में बात करें। हमारे साथ जो है बहुत ही रिनाउंड साइकोथेरेपिस्ट है मेघा कलचुरी, और ये हमें बता रही हैं कि किस तरह से आपके एंजाइटी को आप मैनेज कर सकते हैं। तो ब्रेक पे जाने से पहले जैसा कि मेघा आपने बताया कि बहुत सी चीज़ें हैं जो एंजाइटी है उसको मैनेज कर लेंगे तो बहुत सी चीज़ें मैनेज हो जाएगी, और मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट, राइट। तो जैसे अभी हमने मैनेजमेंट की बात की, लेकिन एवरीवन डू नॉट नो कि कैसे मैनेज करना चाहिए। तो क्या कोई स्ट्रैटेजीज होती हैं या कोई स्पेसिफिक ऐसे टूल्स होते हैं जिससे हम ये एंजाइटी मैनेज कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल। तो मैं पहले थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे ही हमें पता चलता है इन सेशन हम क्या करते हैं, और फिर क्विक टिप्स के बारे में हम बात करते हैं। तो जब भी मेरे पास एंजाइटी के पेशेंट आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, तो मैं ऐसे सोचती हूँ, मेरा अप्रोच इसके लिए ये है कि जब एंजाइटी में कोई भी बंदा आता है तो वो डरा हुआ ही है ना। और हम जब प्रोसेस, बिकॉज आई एम अ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट, तो हम लोग प्रोसेस में जाते हैं, हम उनके नेगेटिव थॉट्स ऑल्टर करते हैं, है ना। फिर हम उनके बिहेवियरल चेंजेस पे काम करते हैं और उनके इमोशन मैनेजमेंट पे काम करते हैं। बट इन सब में टाइम लगता है, लाइक 2 to 3 months। बट व्हाट इफ कि मुझे अभी तकलीफ है, जैसे हम दांत के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दांत तो वो 2 दिन बाद निकालेंगे, बट दर्द खत्म करने के लिए वो पेन किलर देते हैं, राइट। सो माई पेन किलर्स आर दैट क्विक स्ट्रेटजीज विच आई हैव। तो उनमें जैसे कि
आई सजेस्ट, क्योंकि हम काम तो कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में, बट इन द मोमेंट जब एंग्जाइटी स्टार्ट हो गया, आपको फील हो रही है कि एंग्जाइटी है, तब हम क्या करें? तो बहुत क्विक स्ट्रेटजी है, फॉर सम टाइम उस जगह से हट जाइए, बाहर जाके एक हल्का वॉक कर लो, या जैसे आप वॉक का जगह नहीं है, विंडो पे खड़े होकर यू कैन लुक आउटसाइड, विच इज़ जो आपका ध्यान उस समय उस पर्टिकुलर फियर से या ट्रिगर से हटा रहा है। फिर यू कैन लिसन, अच्छा कोई गाना जो आपको पसंद का है, जो सुन के आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, वो आप सुन सकते हैं। क्विक स्ट्रेटजी में ये आता है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, विच ऑल्सो हैज़ अ फॉर्म लाइक इनहेल, होल्ड and exhale very slowly. It's a very effective exercise. Apart from that, you can always have a chit chat with your friend at work. This is also helpful. ये तो बहुत क्विक स्ट्रेटजीज हुई। इसके अलावा देयर इज़ वन टूल जो कि हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्राउंडिंग टेक्निक, विच इन्वॉल्व्स ऑल योर सेंसेस। सो बेसिक नेम वी कैन नेम इट, हम इसको नाम दे सकते हैं 5 सेंसेस टेक्निक। हाउ डू वी डू इट इज़, अगर मुझे अभी फील हो रहा है कि मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही है, तो मैंने क्या करना है, 5 चीज़ें जो मैं अभी देख सकती हूँ, मैं नोटिस करूँगी 5 चीज़ें मुझे क्या दिख रही हैं। उसके बाद 4 चीज़ें जो मैं टच कर सकती हूँ, राइट, 3 चीज़ें जो मैं सुन सकती हूँ, 2 चीज़ें जो मैं स्मेल कर सकती हूँ, और 1 चीज़ जिसको मैं खा सकती हूँ, है ना। मुझे इस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ मैं हूँ ये ढूंढना है। तो बेसिकली आप देखोगे इट्स अ शिफ्ट ऑफ अटेंशन, है ना, और इंगेजिंग ऑल 5 सेंसेस। हमारे 5 सेंसेस को हम इंगेज कर रहे हैं यहाँ पे, एंड इट्स अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक। जब हम बहुत हाई होते हैं बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी, इट ग्राउंड्स अस। अनदर टेक्निक जो मैंने पहले इजाद करी, मतलब मुझे पता नहीं था कि इट इज़ समवेयर इन बुक्स ऑल्सो। मेरा बेटा है छोटा, मैं उसके साथ बहुत खेलती हूँ, तो हम कभी कभी है ना फन कर रहे होते हैं कि व्हेन ही यूज्ड टू स्टडी अल्फ़ाबेट्स, तो हम करते थे कि यू फाइंड आउट वन थिंग फ्रॉम ए, आई फाउंड आउट वन थिंग फ्रॉम बी, एंड ऐसे करके हम अल्फ़ाबेट पूरा करते थे, जस्ट टू मेक हिम लर्न टू अटैच। बट आई फाउंड आउट इट्स अ वेरी गुड टेक्निक टू डाइवर्ट योर माइंड फ्रॉम पर्टिकुलर स्ट्रेसर। सो आप जहाँ भी हो वहाँ फ्रॉम A to Z अल्फ़ाबेट आप फाइंड आउट करने लगो थिंग्स। Say for example, alphabet A, if there is an apple, apple. B, so there is a box. C, there is a computer. करते करते आप you'll reach till M और N, तो आप बहुत calm down हो जाओगे, इतना calm feel करोगे, and it's a very fun activity too. It's not, and sometime if you do not have any things in surrounding, you can have a book, open a magazine, and started finding out words from A. So what I do particularly when it is magazine, A is the first alphabet, 1 word from A, B is the second alphabet, so 2 words from B, 3 words from C. So this I don't know it is written somewhere or not, but this is my technique of sometime dealing with stress because you don't have anything. जैसे मुझे फ्लाइट में बैठते समय बहुत डर लगता है क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस है, तो मुझे वो एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है। दिस इज़ माई गो टू टेक्निक दैट टाइम, एंड इट इफेक्ट लाइक इट्स वेरी इफेक्टिव। सो ये मैंने खुद यूज़ की है, तो मैं आप सभी को बता रही हूँ। Apart from this, always communicate about what you are feeling to your manager, to your family, to your colleagues, to your friends. Build a support system, है ना। जब हम communicate करते हैं तो हम support system बनाते हैं। And then, like last segment में मैंने अपने बताया कि हम mindfulness practice अगर हम daily करते हैं, so what is mindfulness practice is keeping yourself in the present moment. Or if we relate it to anxiety, anxiety is what we are thinking about future. Right? सो अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाएंगे तो हमारी एंग्जाइटी ऑटोमेटिकली कम होती है। सो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस इज लाइक अ वेरी गुड टेक्निक टू मैनेज एंग्जाइटी। दैट इज़ रियली अमेजिंग। तो मेघा, बहुत ही अमेजिंग से टिप्स बताए हैं आपने, और ऑफकोर्स जो भी लिसनर्स हैं जो सुन रहे हैं उनको कहीं ना कहीं ये हेल्प ज़रूर करेगा। सो थैंक यू सो मच आप यहाँ पे आए। लेकिन आखिर में मैं जानना चाहती हूँ कि आपका हमारे लिसनर्स के लिए मैसेज क्या रहेगा? मैसेज, in fact I want to make a request, not a message. मैसेज सभी देते हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। बीइंग अ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर, मैंने बहुत बार ये फील किया है कि लोग मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 अपनी मेंटल हेल्थ को उतनी ही इंपॉर्टेंस दीजिए जितनी हम अपनी फिजिकल हेल्थ को देते हैं। एंड जहाँ आपको फील हो रहा है कि इट इज़ नॉट गोइंग इन अ करेक्ट वे, सो टेक सम प्रोएक्टिव एक्शंस, मतलब एडवांस में आप एक्शन लीजिए इससे पहले कि हालत हमारी बहुत बिगड़ जाती है ना, अपने लिए, अपने लव वंस के लिए। अनदर थिंग, वन मोर रिक्वेस्ट, लाइक आई हैव अ लिस्ट ऑफ रिक्वेस्ट, बट मैं 2 पे ही ख़त्म करूँगी। दूसरी ये है, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि पीपल स्ट्रगल की लोग समझते नहीं हैं। तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ अस टू टेक मेंटल हेल्थ वेरी नॉर्मली कि येस इट्स इक्वलिंग टू फिजिकल हेल्थ, एंड एज वेल मेक अ वेरी हेल्दी इन्वायरमेंट
फॉर दोज हु आर स्ट्रगलिंग, जो लोग जूझ रहे हैं इस मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से, उनके लिए इतना अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए कि वो लोग आके खुल के बात कर सकें, बता सकें, एंड दे ऑल्सो डिजर्व दैट केयर एंड एम्पैथी, राइट? अगर हमारे घर में किसी को फीवर है तो हम उसका बहुत ध्यान रखते हैं, सिमिलरली मेंटल हेल्थ के पेशेंट का भी हमको उतना ही ध्यान रखना है. तो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट और मैसेज, व्हाटएवर यू कैन से. और मेरे ख्याल से ये भी ये ऐड ऑन करना चाहूँगी मैं कि इट इज़ ओके टू सी अ साइकोथेरेपिस्ट, 100%, साइकोलॉजिस्ट, 100%. इट इज़ ओके. तो ये एक जो अवेयरनेस जो हम क्रिएट करना चाहते हैं रेडियो इप्सा के थ्रू, कि अगर आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो इट इज़ ओके. जैसे आपको फीवर होता है, जैसे आपको सर्दी खांसी होती है, वैसे हो सकता है कि आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, लेकिन ये सब कोर्स इसको ट्रीट किया जा सकता है. बिल्कुल बिल्कुल. और ये बहुत कॉमन चीज़ है. हाँ बिल्कुल, बहुत कॉमन है और बहुत इफेक्टिवली ट्रीटेबल है. और इस पे मैं एक और एड ऑन करूँगी. आई नो वी आर प्रोलॉन्गिंग इट. जेन जी जिसको हम कहते हैं, दे आर वेरी अवेयर एंड they are effectively, proactively coming and taking help and getting better. Yes. When it comes about us millennials, we are still struggling to find it out. Is it okay to go or not? So this message is more for millennials. Okay. please take it as okay and as normal, and do visit psychotherapist if you feel like. Okay, so thank you so much मेघा, आप यहाँ पे आए, आपने इतने insightful thoughts दिए हैं और इतनी डिटेल में बताया है एंजाइटी के बारे में, स्ट्रेस के बारे में. और मेरे ख्याल से जितने भी लोगों ने हमें सुना है वो कहीं ना कहीं इसको समझ पाए होंगे और मैनेज कर पा रहे होंगे अब. So thank you so much once again from the team of Radio Ipsa 91.2. My pleasure, and thank you so much Radio Ipsa for inviting me and allowing me to put forward my thoughts about it. Okay, तो ये है हमारे साथ मेघा कल्चुरी. और इस तरह की और भी बातें अगर आपको जाननी है या फिर अपने मेंटल हेल्थ के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आपको ट्यून करके रखना है रेडियो इप्सा और सुनना है मेरा ये शो जिसका नाम है सब कुछ मुमकिन है. So till the time, stay tuned to Radio Ipsa 91.2 FM, जो कि दिल की बात मेरे यानी वानी के साथ.